Hello everyone, welcome to Olive Board. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this session we'll cover the important articles in the form of snippets. तो crisp manner में जो important चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, facts हैं, हर एक चीज़ को हम cover करेंगे for your upcoming RBI Grade B 2023. अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उन्हें बहुत ही क्रिस्प और शार्प मैनर के अंदर हर एक चीज़ को वापस से रिवाइज करेंगे. जैसे कि पहला है एनपीएस और ओपीएस के बीच में डिफरेंस. तो कहीं से भी सवाल बन सकता है. एनपीएस की फुल फॉर्म है न्यू पेंशन सिस्टम, ओपीएस की फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन सिस्टम. एनपीएस इज बेसिकली डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन pension where employees contribute. So here employees contribute towards NPS during their employment, and in case of OPS it is defined as a benefit pension for government employees on the basis of their last drawn salary. So here there is employees contribution here, and it is basically on the basis of the last drawn salary the government employees get the pension. Eligibility is all the Indian citizens between 18 to 65 years are eligible. Here only government employees are eligible. In old pension system there is no risk involved, but in new pension system the risk is involved because the NPS amount is invested in the market linked securities. Right, as far as amount on retirement that will be getting, it provides a fixed monthly pension of 50% of the last drawn salary in case of old pension system. In case of new pension system, 60% of the pension fund is tax free when redeemed. Very important, they can ask this number. And while the remainder is taxable and remains invested in the annuity. So facts pe they can ask the question. Next is WordPress Freedom Index. It is released by Reporters Without Borders. Which country got the rank 1? That is Norway. Second rank by Ireland. Third by Denmark. Fourth by Sweden. Out of how many countries? 180 countries. Fifth rank is by Finland. What is the rank of India? 161. What are the indicators on which you come with the Press Freedom Index? There are 5 indicators: political, economic, legislative, social and security. Right. Next is Vibrant Villages program. We have covered it like number of times. I don't know. I can't give a number. Kitne number of times we have covered it. So as far as Vibrant Villages program is concerned, it is a sponsored scheme. Home Affairs is the ministry. It is basically for 2022, 23 to 25, 26. Vibrant Villages program cover how many villages? 2967 villages in the border areas of which state? Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh. Financial allocation is 4800 crore, and for road connectivity it is 2500 crore. So these numbers are important. As far as benefit is concerned, it will give benefit like improving the quality of life, reverse out migration. The people that are migrating, they are coming back to the areas, leaving the border areas, border villages. So making sure that we reverse that out migration, giving them the best of facilities there so that they remain there. Tourism potential it will leverage, livelihood opportunities it will provide. Overall it will lead to inclusive growth. As far as Financial Inclusion Index is concerned, it is RBI's Financial Inclusion Index. It captures the extent of financial inclusion across India. And is it improved? Yes. From 56.4 in financial year 21-22, basically it was 53.9 in 2021. So it has improved to 56.4. So this index is across 3 parameters. It is taken: access, usage and quality. Access is given 35% weightage, usage is given 45% and quality is given 20%. There are total of 97 indicators based on that is clubbed into 3 parameters. Is there any base year? No, there is no base year, right? They can give you such questions. Panchamrit roadmap for a greener India. Every fact that is associated with this is very important. Reach 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2030. 50% of the energy requirements from renewable energy, 50% by 2030. Reduction of total project carbon emissions by 1 billion tons from now to 2030. 1 billion it is. Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. Achieving net zero
emissions by 2070. So all these are very, very important points. Make sure that you remember. As far as PM Shri scheme is concerned, first of all, do remember the full form of the scheme. That is PM Schools for Rising India. This is a centrally sponsored scheme. Duration is 2022-23 to 2026-2027, and to showcase the components of national education policy, just a minute. Yeah, to showcase the components of National Education Policy 2020 serves as a model school. So basically here you are making sure that you have model schools that will help further. एक model school, एक in the sense number of schools you are taking 14,500. Right, so do remember this number 14,500. तो you are taking them as a model schools ताकि in line with the national education policy कि बाकी schools भी फिर बाद में वैसे represent करें और best of infrastructure facilities आते हैं. So eligibility, जिनको आप model schools बनाओगे, you will be serving तो existing schools हैं that are run by centers, states, UTs, केंद्रीय विद्यालय, local bodies, so all they are included. Right. Next is important appointments. So here CAG of India, Girish Chandra Murmu, very important. Attorney General of India, R. Venkat Ramani. Chief Election Commissioner, Rajiv Kumar. NCSC Chairman, Vijay Sampul. Finance Commission के Chairman, NK Singh. UPSC के Chairman, Dr. Manoj Soni. NCST के Chairman, Harsh Chauhan. और NCBC के Chairman, हंसराज गंगाराम अहीर. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपको याद में रखनी है. फिर उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड पे आ जाते हैं. फ्रेंच ओपन 2023 में मेंस सिंगल में विनर नोवेक जोकोविक, रनर अप कैस्पर रुड. विमेन सिंगल में विनर ईगा स्वाइतक एंड रनर अप कैरोलिन मुचोव. सो हेयर विमेंस डबल भी है, मेंस डबल भी है. जैसे ऑस्टिन एंड इवान विनर रहे मेंस डबल के अंदर. रनर अप है सैंडर गिल एंड जॉरेन ब्लिगिन. और इधर विमेंस में अगर देखो विनर और रनर अप, तो ऐसे करके आपको एक दो बार देख लोगे, नाम्स याद में रह जाएंगे. फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी याद में रह जाए, आंसर आपके सामने ही होगा, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल. ठीक है. चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार. और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी. कहीं से भी सवाल बन सकता है. ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसीलिए हर एक ऐसा फैक्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए. यहाँ से सवाल मतलब एक्सपेक्टेड है और सीधा फैक्ट्स है. अब क्या है ना, जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है तब आपको ऐसा नहीं होता है कि पूरी लाइंस पढ़नी होती हैं. तब हमें चीज़ों को रिवाइज करना है, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ना है. और रिवीजन ऐसे ही होती है, ये होती है स्मार्ट रिवीजन जो हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम के जब पास हों तो ये स्मार्ट रिवीजन हो. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023. लिस्ट है अवार्ड्स की और विनर्स की. याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी. स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर शेली एंड फ्रेसर प्रिस. टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम. ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस एल्क्रेज. कमबैक ऑफ द ईयर क्रिस्टियन एक्सन. स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी कैथरीन डी रनर. वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एलन गू. लॉरिस स्पोर्ट्स फॉर गुड टीम अप. सो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड थे, ध्यान में रखना. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से बात कर लेते हैं. आपके लिए एक होमवर्क है और ये पूछा जा सकता है. ADB, AIIB और NDB, इन तीनों की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए. तीनों की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे. ADB स्टैंड्स फॉर, AIIB स्टैंड्स फॉर और NDB स्टैंड्स फॉर. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में. ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में. AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और NDB का हेडक्वार्टर है शंघाई में. वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पिस और AIIB के जिन लिक्विन और NDB के डिल्मा रोसफ और ADB के मेसेटगू एसेक्वा. ठीक है. सॉरी, अभी जो है अजय बांगा टेक्स ओवर एज द 14th वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट फ्रॉम जून 2023. सो दैट इज द अपडेट. और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. लार्जेस्ट शेयर होल्डर वर्ल्ड बैंक में USA, AIIB में चाइना, ADB में जापान और USA और NDB में ब्रिक्स कंट्रीज. एवरी सिंगल फैक्ट इज इंपॉर्टेंट.
सवाल यहाँ से कैसा बनेगा कि जो ये सरकार का रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है और सबसे कम कहाँ से आता है, तो यहाँ से सवाल बनता है. एंड विल टेक दैट अप. जस्ट गिव मी अ मिनट. Just hold on for a minute. Actually, I'm not able to move the slide. Just a second. Once again, I'll share the slide with you. Yeah. So there it goes. सो हेयर दे विल आस्क, ओके, सेंट्रल का रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स, मतलब पैसा कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा और पैसा कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा. तो सरकार का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आता है, वो है बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज़, और उसके बाद इधर आप देखो तो जीएसटी से, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से, फिर इनकम टैक्स से. तो ऐसे सवाल बन सकता है. और सरकार का पैसा खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर्स की नहीं, उसके बाद स्टेट्स का शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर. तो ऐसे करके एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद ट्रेंड्स एंड डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट 5.9%, दैट इज 5.9%. रेवेन्यू डेफिसिट 2.9%, प्राइमरी डेफिसिट 2.3% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7%. डायरेक्ट नंबर्स हैं, सीधा फैक्ट्स हैं, सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखना है आपको. इंडिया के रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करी जा रही है. नेम कावेरी. तो अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन से पूछा जाए तो 2023 में दिस वाज देयर. रेस्क्यूड फ्रॉम, कहाँ से रेस्क्यू किया था, सूडान से. अगर गंगा रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया की बात करी जाए, सो इट केम टू 2022 एंड रेस्क्यूड फ्रॉम यूक्रेन. अगर देवी शक्ति रेस्क्यू ऑपरेशन है तो 2021 में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लाया गया था, रेस्क्यूड फ्रॉम अफगानिस्तान. अगर समुद्र सेतु है 2020 में लाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक से. इट वाज बेसिकली द वंस वर रेस्क्यूड फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक. संकट मोचन 2016 का रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यूड फ्रॉम साउथ सूडान. मैत्री 2015 का रेस्क्यूड ऑपरेशन है, फ्रॉम नेपाल रेस्क्यूड. राहत 2015 का रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यूड फ्रॉम यमन. तो 23, 22, 2020 तक वाले तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतने तो आपको याद होने ही चाहिए. अगला है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. अब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अकाउंट कैन बी ओपन फॉर इंडिविजुअल गर्ल और अ वुमेन. वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, दैट इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम अप्रैल 2023 to March 2025. This is very important. They can ask from this. It intends to provide female empowerment through financial independence. Minimum deposit 1000 rupees का, maximum deposit 2 lakh का. इंटरेस्ट पर एनम 7.5%. पार्शियल विड्रॉल हो सकता है, येस, ऑफ अप टू 40% आफ्टर 1 year. प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड, येस, आफ्टर 6 months, बट विद द इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड बाय 2%. एवरी लाइन कंटेन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट. टॉप रेमिटेंस रिसीप्ट हमने पढ़े ही हुए हैं. इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसीप्ट के रिसिपिएंट है 100%. तो फिर उसके बाद यहाँ पर यू कैन से $100 billion. तो उसके बाद मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर इजिप्ट, फिर पाकिस्तान, फिर फ्रांस, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर वियतनाम. याद होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 5 का तो याद होना ही चाहिए. रही बात लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंडिया की रैंक है 38 एंड 2018 में थी 44. ये परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. जिसने टॉप किया वो है सिंगापुर. डायमेंशंस की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलीनेस, कस्टम, ये हैं आपके डायमेंशंस. तो ये आपको डायमेंशंस याद होने चाहिए, सवाल बन सकता है.
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है, यस, पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया फर्स्ट कौन आया? फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड, फोर्थ इजराइल, फिफ्थ नीदरलैंड, सिक्स स्वीडन। इंडिया की रैंक 126। इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट देख लेते हैं। हर एक फोरकास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, फोरकास्ट बाय आरबीआई, बाय वर्ल्ड बैंक। सो एक कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। लाइक 22-23 और 23-24 का 7.2% था, 23-24 का फोरकास्ट है 6.5%। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 23-24 के फोरकास्ट हर किसी के द्वारा याद कर लेना। वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है 6.3%, OECD 6.0%, IMF 5.9%, ADB 6.4%, UN's WESP रिपोर्ट 5.8%, Moody's 5.5%, Fitch 6.3% and Economic Survey 6.0 to 6.8%. ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय स्विस फ्रॉम IQ एयर। फिर यहाँ पर इंडिया 8th वर्स्ट है आउट ऑफ 131 कंट्रीज। तो टोटल 131 कंट्रीज होती हैं, इंडिया की रैंक मतलब 8th है वर्स्ट में। 1 2 3 4 5 की बात करें तो थर्ड रैंक 1 पे है, इराक सेकंड रैंक पे है, पाकिस्तान थर्ड पे, बहरीन फोर्थ पे, बांग्लादेश फिफ्थ पे और इंडिया है 8th रैंक पे। ठीक है, भिवाड़ी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से थर्ड नंबर पे है, दिल्ली फोर्थ नंबर पे है इन 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। ठीक है, सवाल बन सकता है किसी से भी किसी भी टॉपिक से। अब जैसे मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चंस देती हूं इन सबसे एसोसिएटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे आई एम सॉरी, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है आपको इन सारे सवालों के जवाब। जैसे कि सरकार, ओके, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB? माय फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई रिपीट इट ट्वाइस, आप साथ साथ आंसर मेंशन कर सकते हो। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है और हु हैज टेकन ओवर एज द 14th वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट? माय 2 क्वेश्चंस आर देयर। Who is World Sportsman of the Year? Mention it down in the comment section. Chief of the Air Staff. Who is the Chief of Air Staff? Mention it in the comment section. Chairman of Finance Commission. ये बताना है आपको। PM श्री स्कीम की टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट. What is the total project cost of PM श्री स्कीम? My next question is achieving the target of net zero emission. We want to achieve it by 2030, 2040, 2050, 2070. What is the right answer? इसी तरीके से सवाल आएंगे। RBI's Financial Inclusion Index के अंदर what is the weightage for quality? There are 3 parameters. Mention those 3 parameters and the weightage of quality is कितने %? This is what you have to tell me. As far as Vibrant Villages program is concerned, it will cover how many villages and what is the financial allocation? I am giving like every question from every snippet so that you are able to recall, right? What is the rank of India in WordPress Freedom Index? This you have to tell. So ये जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ साथ साथ सुन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, आंसर लिख दो और फिर अगला क्वेश्चन ले लो। ऐसे करके आप ये कर सकते हो, ठीक है, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट बता देना जरा मुझे इन द चैट सेक्शन। रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन कावेरी इज अ रेस्क्यू ऑपरेशन। इट वॉज इन विच ईयर एंड रेस्क्यूड फ्रॉम सूडान, यूक्रेन, अफगानिस्तान। सो ये आपको बताना है, ये जो इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन था। एज फार एज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज कंसर्न, it is one time small saving scheme that is available for a period of how many years? From 2023 to, you have to tell me, to, that is your answer. Logistic performance index में इंडिया की रैंक कितनी है? That you have to tell me. और it is released by, ये भी बता देना, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? टेल मी इन द चैट सेक्शन। अगर नहीं भी बताना तो क्या है ना, आप एक वो लिख लो, नोटबुक ले लो और ये क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद लिखो
और एक चीज़ ज़रूर करना, इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट बाय आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, फिच, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद कर लेना, कहीं से भी सवाल यहाँ से बन सकता है, राइट। सो दिस वॉज द सेशन एंड आई होप कि ये आपको बहुत काम आए। एंड अब ये लास्ट टाइम रिवीजन चल रही है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करते जाओगे उतना इट विल बेनिफिट यू। और ये रिवीजन भी एक तरीका है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है वापस से 15 पेज दोबारा पढ़ने हैं, वो 15 पेज को कंसाइज करके आप 2 पेज में कैसे लाके रिवीजन करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर आई एम समिंग अप दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड डू आंसर दीज क्वेश्चंस। यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। जरूरी नहीं है कमेंट सेक्शन में आप अपने नोटबुक पे ही चाहे अपने आंसर्स लिख दो, बस पर्पस ये है कि आप रिकॉल कर लो, आपको सारे याद हो, ठीक है। समिंग अप दिस सेशन, दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. We'll meet you in other sessions. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.